So I request Mr. Tariq Ali to come on the dais and recite 2 words from Quran. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum. Good morning to everyone. I am Dr. Samia Azhar, Senior Resident Department of Pathology, and it gives me immense pleasure to welcome you all to this special gathering as we observe the World Hemophilia Day, a day of awareness, unity, and action for global healing. It is my honor to stand before you today as we embark on a journey of exploration into this complex and critical care of medicine. There is an urgent need for equitable access to diagnosis and treatment, because no matter where someone is born, access to quality care should not be a privilege but a fundamental right. Today we are joined by healthcare professionals, researchers, patients, caregivers, advocates and friends, all of whom form the pillars of strength in fight against hemophilia. Your presence here reflects our shared commitment to improving lives, advancing science, and building a future where no one has to suffer due to lack of knowledge or resources. Let us use this occasion to share experience, discuss challenge, celebrate milestones, and most importantly, foster hope. On behalf of the organizing committee, I warmly welcome each one of you. Let us today make not just meaningful but transformative. I now request President Hemophilia Society of Kashmir, Mr. Saeed Majid Qadri, to give the presidential address. थोड़ा ताख़ीर से आज ये स्टार्ट हुआ है क्योंकि डॉक्टर साहिबान का बिजी शेड्यूल होता है, तो उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रहे हैं बाकी डॉक्टर साहिबान। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले हमारे एचओडी डॉक्टर बिलाल साहब। बहुत सारे पेशेंट भी जान रहे होंगे जो नए डायग्नोज में हैं। हमारे हीरो एचओडी डॉक्टर बिलाल साहब जो हीमोफीलिया के लिए एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं, हमारी हुकूक की जंग लड़ रहे हैं और हम इनके पीछे हैं। इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर मुख्तार साहब,
اور صوفی صاحب ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، بلکہ 19 سے ہی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ رہے ہیں. انہوں نے کارہائی سر انجام دیے ہیموفیلیا کے لیے. اور 17 اپریل کو یہ ڈے اصل میں منایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد 2 مہینے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ورلڈ سطح پر. لیکن یہاں پر اس سال ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا ہم 17 اپریل کو یہ ڈے اس طرح نہیں بنائیں گے، کیونکہ اس سال بہت مشیب و فراز سے ہیموفیلیا پیشنٹس کی زندگی گزری ہے، خاص کر لاسٹ ایئر اکتوبر سے. اور دوائیوں کی کمی ہوئی، خاص کر اینٹی ہیموفیلک فیکٹرز کی کمی ہوئی. اس کے بعد کوئی سپلائی نہیں آئی، اور یہاں تک کہ اینول سپلائی جو ہے اس میں بھی ابھی ساری سپلائی نہیں آئی ہے. تو اکتوبر سے وہ پرابلم اسٹارٹ ہو گئی، اور اس کے چلتے پیشنٹس کو پروفیلیکسس ٹریٹمنٹ بھی بند کرنا پڑا. اور ایمرجنسی اور آن ڈیمانڈ ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بڑی حکمت عملی اختیار کی. ڈاکٹر بلال صاحب نے، انہوں نے بولا کہ ہم ایمرجنسی اور آن ڈیمانڈ ہی یوز کریں گے جب تک یہ سپلائی رہے گی. تو بہرحال آج تک کوئی بھی انٹورڈ انسیڈنٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن جو کمپلیکیشنز پیشنٹس کو ہوئی ہے وہ کریکٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہیموفیلیا کو جب جوائنٹ بلیڈ ہو جاتا ہے فریکوینٹلی تو اس کے بعد ان کے جوائنٹس ریکور کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے. تو اس کے بعد اکتوبر مہینے میں یہ پرابلم جب سٹارٹ ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے ایک ریکوزیشن بھیجی ہے سپلیمنٹری کے لیے جی ایم سی کارپوریشن کو. جی ایم سی کارپوریشن جب گئی ہے تو کچھ عرصے تک جب سپلائی نہیں ہوا، حالانکہ جی ایم سی کارپوریشن میڈیکل سپلائز کارپوریشن نے وہیں سے یہ بتایا کہ آپ ریکوزیشن بھیج سکتے ہیں. اس کے بعد جب فیکٹر سپلائی نہیں آئی تو ہیموفیلیا سوسائٹی کے ممبر ہم چلے گئے جموں اور ہم سیکٹری ہیلتھ سے ملے. جب ہم ان سے ملے ہیں تو انہوں نے بولا ہمیں کچھ دن دے دیجئے، یہ سپلائی ہم کریں گے. اس کے بعد کچھ دن نہیں بلکہ 2 ہفتے گزر گئے تو نہیں آئے، تو پھر سے ہم نے جموں کا رخ کیا ہے. ہم جموں پھر سے گئے ہیں ہیموفیلیا سوسائٹی کے ممبر. تو وہاں ہم ملے تو انہوں نے امیڈیٹ ایک لیٹر بنائی اس ٹائم، اور میڈم جو ہیلتھ منسٹر ہے انہوں نے سائن کی. ہم وہی رہے 3-4 دن، سیکٹریٹ کنٹینیو گئے. تو انہوں نے میڈیکل سپلائز کارپوریشن کو ایک لیٹر لکھی ہے کہ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہم جو آپ کے پاس 08 میں فنڈ ہے اس میں سے آپ ہیموفیلیا میڈیسن پروکیور کر سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد ایک اور مہینہ ہوا، نومبر کے اینڈ میں ہم پھر سے جموں گئے سیکریٹریٹ ان سے ملنے. تو وہاں پر انہوں نے اس کے بعد 2 دن کے بعد ایک میٹنگ بلائی میڈیکل سپلائز کارپوریشن کے ساتھ. تو اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں اس میٹنگ میں کیا ہوا ہے، بٹ باوجود ذرائع نے بتایا ہے کہ کارپوریشن نے ڈینائی کر دیا ہے کہ ہم پروکیور نہیں کریں گے، ہمارے پاس پرٹیکولر ہیموفیلیا کے لیے فنڈ نہیں ہے. جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. ہیموفیلیا کے لیے پرٹیکولر کچھ فنڈز جو ہے 10-12 کروڑ وہ جی ایم سی سری نگر کو آتے ہیں. باقی سارا سب کچھ یا ریکنسیلیشن کے بعد مینیج کرنا پڑتا تھا کم از کم 60% جی ایم سی کو، یعنی ہماری میڈیسن کی برڈن جو ہے وہ جی ایم سی پر پڑتی تھی. تو یہ ہو رہا تھا، یا کبھی کارپوریشن نے بھی کیا ہے اس دوران، بٹ اس سال کارپوریشن نے انکار کیا کہ ہم نہیں کریں گے. بہرحال کہنے یہ ساری دلیل ہر پیشنٹ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہیموفیلیا سوسائٹی کے ممبر کیا کر رہے ہیں. کچھ پیشنٹ کال کر رہے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، بٹ جو ہو رہا ہے جو ہم نے کیا ہے وہ یہاں کہنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے نیوز پیپرز میڈیا کا سہارا لیا ہے، لیکن آج پہلی بار ہمیں پتہ چلا کہ کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، کسی کے کانوں میں جوں تک نہیں رہیں گی. اس کے بعد ہم نے کیا کیا، 17 اپریل آیا، مطلب پہلے اینیول ریکوزیشن گئی. اینیول ریکوزیشن میں بھی اتنا تاخیر لگا دیا گیا، اتنا تاخیر کہ یہ پہلی بار ہوا پچھلے 5 سالوں میں. ہم نے 17 اپریل کو پریس اینکلو کا رخ کیا ہے. ہم نے پیشنٹس کو بلایا، وہاں ہم نے سوچا ہم پیسفل ایک ڈیمانسٹریشن کریں گے تاکہ حکومتی اداروں تک ہماری بات پہنچے گی. تو بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم پریس اینکلو پہنچے ہیں، میڈم بھی یہاں پر ہیں، حافظ کی مما یہ بھی تھی ساتھ، اور بہت سارے پیشنٹ تھے جو آئے ہوئے تھے. تو ابھی ہم گاڑیوں سے اتر ہی رہے تھے تو وہاں پر پولیس پہلے سے موجود ہوتی ہے. تو انہوں نے ہمیں پکڑنا سٹارٹ کر دیا اور انہوں نے ڈرائیو کیا ہمیں ٹورڈز دیئر وہیکل. وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ وہیکل کیا ہوتی ہے، وہ ٹرک. تو میں نے ان کو منع سماجت کہ ہمارے پیشنٹ ہیں، یہ ہیموفیلیا ہے، یہ بلیڈ کر سکتے ہیں، میڈیکل ایمرجنسی، ان کو بہت ہی سیریس پرابلم ہو سکتی ہے، آپ ایسا مت کرو، ہم خود ہی تھانے چلے آئیں گے. لیکن انہوں نے ایک بھی نہیں سنی.
तो कुछ पेशेंट्स को उन्होंने पढ़ दिया है। तो उसके साथ हमारे 2-3 मेंबर, महराज साहब है, आदिल साहब, वो भी चढ़ गए गाड़ी में उनके साथ। तो मैंने किसी तरह जान छुड़ाई, एवं मुझे भी नहीं बचा, मुझे भी वो घसीट रहे थे, तो मैंने किसी तरह जान छुड़ाई और हम एम्बुलेंस में अपने पेशेंट्स के पीछे कोठीबाग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तो कुछ पेशेंट जो है वो एस्केप यानी भागने में कामयाब हुए, उनको शकील साहब ने मैनेज किया है प्रताप पार्क में। ये स्टोरी बताना जरूरी है, हर एक पेशेंट को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हुआ क्या, फैक्टर में जो शॉर्टेज हुई, बीच में इतनी ब्रेक आई, ये क्यों हुई, ये क्या मसला क्या था। उसके बाद 3.5 घंटे हम बंद रहे वहां पर। उन्होंने फोन भी हमारे छीने हैं, उनका स्विच ऑफ कर दिया है, किसी को फोन भी करने नहीं दिया है। किसी तरह आदिल साहब हमारे, उनके पास 2 फोन थे, उन्होंने एक फोन उनको दे दिया, एक फोन बचाया इसने, और उसको नोज ब्लीड भी हो रहा था। जब पेशेंट्स को थाने की तरफ ले जा रहे थे, उस टाइम ड्राइवर ने कुछ ब्रेक्स जो मारी है, कुछ पेशेंट्स को चोटें भी आई है, जिनको नोज ब्लीड हुआ और एक को माउथ ब्लीड, टीथ ब्लीड भी हुआ। ठीक है, मिस्टर आदिल को नोज ब्लीड भी हो रहा था, लेकिन इसने किसी तरह वो एम्बुलेंस में बैठ गए, उन्होंने कॉल किया। बदकिस्मती की बात है, जब पुलिस हमें दिखी तो उस टाइम उन्होंने मीडिया को भी कवर करने नहीं दिया है, किसी भी मीडिया पर्सन को उन्होंने ना कैमरा खोलने दिया, ना हमसे बात करने दी। उसके बाद हम थाने चले गए, थाने में उन्होंने, आदिल ने किसी तरह ग्रेटर कश्मीर से राब्ता किया, तो ग्रेटर कश्मीर वालों ने बोला हमने पहले ही देखा है। तो उसके बाद ग्रेटर कश्मीर और एक और मीडिया आउटलेट ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कश्मीर की जो है उनके साथ राब्ता किया, तो उन्होंने 2 घंटे के बाद थाने का रेड किया। तो वहां पर उन्होंने पाया कि यहाँ बच्चे उन्होंने लाए हैं, तो उनसे पूछा, फिर एसएचओ साहब भी आ गए। एसएचओ साहब ने बोला कि हमें नहीं पता था ये हीमोफीलिया वगैरह। मैंने बोला सर मैंने आपको चिल्ला कर बोला है, और मैं विजिबल हूँ, खासकर बहुत सारे पेशेंट जो है ना वो नहीं चल पा, वो हैंडीकैप्ड है, तो आप दिख रहे थे, आप एक नहीं सुन रहे थे। तो बोला अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने माजरत तलब की कि हमें नहीं पता था, अब हम माजरत चाहते हैं, लेकिन आप फीडबैक भी दे सकते हैं हमारे खिलाफ। हमने नहीं दिया, चलो उन्होंने गलती तस्लीम कर दी। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उनको बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते थे, जिन गाड़ियों में आपने इन बच्चों को भरा है ये यूज नहीं कर सकते, ये ट्रांसपोर्ट, और बहुत गलत किया। उसके बाद एसपी तक बात पहुंची ग्रेटर कश्मीर के जरिए। एसपी श्रीनगर ने उनको ऑर्डर्स दे के इनको रिलीज कर दो, और उसके बाद इनको इजाजत दे दो, ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करें। उन्होंने 5 बजे हमें रिलीज किया। हम इवन तो उन्होंने बोला था हम गाड़ियां प्रोवाइड करेंगे आपके लिए, आपको प्रेस एनवेलप पहुंचा देंगे, लेकिन हमने नहीं माना, हमारे पास गाड़ियां थी। तो हम पहुंच गए, तो हमने प्रोटेस्ट अपना स्टार्ट किया और प्रोटेस्ट दर्ज किया है। तो उस वजह से ये डे उस टाइम नहीं बना, हमने नहीं मनाया। तो उसके बाद हालातों का भी तकाजा था कि हम नहीं बना पाए, तो आज हमने ये डे ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर। और आज भी बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है इस वक्त, फैक्टर 9 और वॉर्मली बेड फैक्टर हमारे पास नहीं है। इवन तो वॉर्मली बेड फैक्टर जो है वो मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन कोई 20 दिन पहले पहुंच चुका है, बट हमारे ऊपर हमेशा वो टेस्टिंग की तलवार हमारे सरों पर लटकती रहती है, वो आज भी वैसी की वैसी ही है। तो वो टेस्टिंग प्रोसेस है, वो 2 महीने 3 महीने भी कभी कभी उसमें कंज्यूम हो जाते हैं, तो अभी वो वॉर्मली बेड नहीं आया। तो फैक्टर 9 का अभी ऑर्डर ही नहीं गया है, और कुछ इसमें पता करने के बाद हम जीएमसी गए, हम फिर श्रीनगर सेक्रेटरीट गए कि पता करने की मसला क्या हुआ कि फंड्स की कमी है। यहाँ पर ये है, मैं कह रहा हूँ कि लैब्स है यानी हुकूमती इदारों का, कि अगर वो फंड कमिटेड बजट पास करते ही देते हैं उसी टाइम डिमांड नहीं है, तो अब ये बोलना कि फंड नहीं है ये गलत बात है। अगर फंड नहीं है तो कम से कम मुंतजमीन को, आला हुकाम को, मैं नाम नहीं लूंगा, इदारे को लिखना चाहिए था कि हमें ये फंड दीजिए या कमिटमेंट दे दीजिए। हीमोफीलिया हमारे पास सीरियस प्रॉब्लम है, फैक्टर नहीं है, हम एटलीस्ट इनका फैक्टर प्रोक्योर करेंगे, या फंड कमिटमेंट वो दे सकते थे, बट नहीं। लाइतुलाल से काम लिया जाता है और हीमोफीलिया को इग्नोर किया जाता है। ये 5 सालों में पहली बार हुआ है। यानी डॉक्टर साहब ने जिस लेवल तक हम इसको ले गए थे, डॉक्टर साहब की बदौलत, यानी साउथ में केरला के बाद श्रीनगर का चैप्टर माना जा रहा था, उसको अचानक पता नहीं किसी की नजर लगी है, तो ये हालात वाक़ात पेश आए। तो उसके बाद हमने क्या किया, मैं शॉर्ट बताऊंगा आपको, इतना टाइम भी नहीं है। उसके बाद हमने कोर्ट का रुख कर दिया, तो फाइनल और वाहिद रास्ता वही था हमारे पास, तो हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वहां पर की। तो अभी कोई हेयरिंग नहीं हुई, बट पिटीशन तो पहुंच गई है इदारों के पास जो इसके जिम्मेदार है और जो मुंतजमीन है।
تو بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن نوٹس ابھی کل جانے کی ہیئرنگ کل ہونی تھی, وہاں میں کوئی میٹنگ تھی ان کو سپریم کورٹ کے یہ چیف جسٹس کے ساتھ, تو وہ نہیں ہوئی. انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر وہ ہو جائے گی. امید کرتے ہیں ہم. ڈاکٹر صاحب بھی اس پر بالکل کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک مطلب آپ سنیے, ہم جو کچھ لوگ گھر پہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, جب ہم یہ سپلیمنٹری ڈیمانڈ گئی ہے اس کے بعد مطلب سیکٹری ہیلتھ نے بولا کہ ہم کریں گے, کوئی بات نہیں آپ کچھ دن دے دیجیے وغیرہ. اس کو اس طرح مس لیڈ کیا گیا ہے کہ کچھ دن کے بعد وہ وہاں سے کیا ہے کہ ہم کو ایک آڈٹ کی لیٹر آ گئی ہے کہ آپ 3 سال کا آڈٹ ہمیں دے دیجیے. ایک مزاح کا خیز, آپ 3 سال تک کہاں تھے؟ 3 سال کے بعد ٹھیک ہے, ایسا نہیں مطلب جینوئن ہے, دے سکتے ہیں, بٹ آپ فیکٹر سپلائی کرنے کے بجائے وہاں سے آڈٹ پہلے مانگ رہے ہیں. آڈٹ مطلب ایسا ہمیں لگا چلو آڈٹ کے بعد یہ شاید کریں گے. ان کو یہ پتا نہیں کہ آڈٹ کے دوران پیشنٹ بھی مر سکتا ہے, پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے 3 سال کا آڈٹ جو ہے 3 گھنٹے میں دے دیا. کرسٹل کلیئر تھا سب, کوئی خامی نہیں تھی. اس میں ایک پیشنٹ کا یہ بھی تھا, ان کو 48 لاکھ کا فیکٹر لگ گیا ڈیورنگ سرجری, ان کا پرولونگر بلیڈ ہوا. تو وہاں سے وہ کیا بولتے ہیں, خاموش ہو گئے صاحب, کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے نا کہ اب مطلب اب یہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں. لیکن اس قدر مجھے نہیں پتا کہ ہیموفیلیا کے بارے میں ایڈمنسٹریشن میں اس قدر زہر بویا گیا کہ پھر بھی سپلائی نہیں کیا. انہوں نے آڈٹ لینے کے باوجود بھی سپلائی نہیں کیا. لیکن ہم لگ رہے ہیں اور بھی قانونی ادارے ہیں, انصاف کے ادارے, جہاں ہم انصاف حاصل کریں گے انشاءاللہ ضرور, اور دوائی آئیں گی. اس کے بعد جو اس دوران میں آپ کو بتاؤں, فیکٹر کی کمی ہوئی, فیکٹر 8 کی کمی ہوئی, سارا سب کچھ بند تھا. لیکن ہم نے ہیموفیلیا سوسائٹی نے اپروچ کیا کہ ہم کچھ فیکٹر پرچیز کریں گے, لیکن وہ کوئی بھی کمپنی دینے کے لیے تیار نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس گورنمنٹ سپلائی ہے اور بہت کم سپلائی ہم نہیں دے سکتے. 3 لاکھ کا ہم نے اس ٹائم ہیومنٹیرین ایڈ فیکٹر 8 منگوایا. 2 پیشنٹس کو اس ٹائم سیریس بلیڈ تھا, ایک عادل ہے ان کو جی آئی بلیڈ تھا, دوسرا بانیال کا پیشنٹ ہے اس کو ایوپسوس ہیموٹوما تھا. الحمدللہ اس ہیومنٹیرین ایڈ سے وہ بچ گئے. اس کے بعد کیا ہوا, فیکٹر 9 کی پرابلم آ گئی. فیکٹر 9 بھی کہیں اوپن مارکیٹ میں نہیں مل رہا تھا, تو ہم نے پچھلے دنوں کسی طرح ہم کامیاب ہو گئے, کوئی 4 لاکھ کا فیکٹر وہ پریکیور کیا ہے, جن میں سے کچھ پیشنٹس کو ہم نے دیا ہے. ایک پیشنٹ وہاں پر سیریس تھا, لائف تھریٹ بلیڈ تھا, ان کو ایوپسوس ہیموٹوما, وہ سوپور سے تعلق ہے, ان کا فیکٹر 9 ڈیفیشنٹ, تو ان کو کچھ فیکٹر لگا ہے اور وہ صحت یاب ہوا ہے. شکر اللہ کا اور ڈاکٹر صاحب کی محنت اور کاوشوں کی بدولت وہ ڈسچارج بھی ہوئے ہیں. تو باقی بھی کچھ پیشنٹس کو لگا. آج ہم جو اپنے ساتھ فیکٹر لائے ہیں یہیں پر یہ دکھانے کے لیے, ادروائز جو ہم کرتے ہیں ہم نہیں دکھاتے, آج دکھانے کے لیے سب کو وہ ڈاکٹر صاحب کے ہم سپرد کریں گے. 25,000 IU فیکٹر 9 جو کہ قریب 4 لاکھ کی قیمت ہے اس کی, اور باقی 1 ملی گرام فیکٹر ملا ہی نہیں کہیں کسی طرح 20 وائلز ملی ہے, وہ ایمرجنسی کے لیے ہم نے اپنے پاس رکھا, اور جو کہ اپڈیٹ ایئر میں ہم رکھیں گے. وہاں ڈاکٹر ڈیسائیڈ کریں گے پیشنٹس کو دے کر کے ہم کو کس کو دینا ہے جب تک سپلائی آئے گی. یہ حالات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں اس سال, اور بہت ہی مطلب لاسٹ یہ 2024 اکتوبر سے یہاں تک جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں اور ہمارے پیشنٹ جانتے ہیں. کتنے پیشنٹس کو لائف تھریٹ, 3 پیشنٹس کو لائف تھریٹ بلیڈ ہوا اس دوران. جوائنٹ بلیڈ بہت سارے پیشنٹس کو ہوا, ماؤتھ بلیڈ بہت سارے پیشنٹس کو ہوا. FFP 4-5 سال کے بعد پھر سے پیشنٹس کو لگا. وہ FFP جس کو ہم نے بند کیا تھا, ڈاکٹر صاحب کی کوشش میں پھر سے بتاؤں گا, بار بار بتاؤں گا, ہمیں مقبول منت رہنا چاہیے اپنے HOD کے, جنہوں نے آپ بتائیے کہ میں آپ کو بھول گیا تھا یہ بتانا کہ اس کے بعد جب یہ مسئلہ ہوا, یہ سارا یہ مسئلہ بن گیا, تو جب انہوں نے آڈٹ مانگا ڈاکٹر صاحب سے, تو ہمیں لگا کہ یہ اب HOD کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. اب ہم میڈیا میں جب جاتے تھے ہم ان کو بولتے تھے, وہ بولتے تھے ہم HOD صاحب سے بات کر سکتے ہیں پلیز. اب ان کی کرسی کو بھی ہمیں ٹکا لگا. اب بات ان کے ساتھ مت کیجیے, ہمارا ورژن لے لیجیے, آپ چاہیں گے تو اس کو آپ پبلش کر سکتے ہیں. لیکن وہ کرتے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے مجھے بولا, ہم جب ڈاکٹر صاحب سے ملے ہیموفیلیا سوسائٹی ممبر فریکوینٹلی ان کے ساتھ ملتے ہیں, ان کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں. انہوں نے بولا میں اپنی کرسی کی پرواہ نہیں کر رہا ہوں. یاد رکھنا یہ بات ہمیشہ, مجھے کوئی پرواہ نہیں کرسی کی, مجھے سچ بولنا ہے, مجھے پیشنٹوں کی پرواہ ہے. یہ آپ یاد رکھیں گے ہمیشہ کہ کسی آفیسر کا یہ کہنا, آج کے آفیسر آپ کو پتا ہے اپنی کرسی کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسے بھی کارنامے کرتے ہیں تاکہ وہ آگے جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے بولا مجھے اپنی کرسی کی ٹینشن نہیں ہے, پیشنٹس کی حالت ہی ویسی تھی.
ये देखकर मतलब ये सब मुझे पेशेंट्स तक ये बात पहुंचानी थी कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ इस वक्त डगर पर खड़े हैं और कहाँ पहुंचे, हमने क्या किया है। बहरहाल वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। डॉक्टर आशिक अली साहब आए हैं, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। आपको बताऊं, मैं पहले दांत निकालने से क्या दांत को हाथ लगाने से मतलब डरते थे, डॉक्टर्स नहीं करते थे, लेकिन डॉक्टर आशिक साहब, अल्ताफ साहब और बाकी जो कुछ इनके साथ डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, तो ये इतना आसान हो गया। आज आराम से फैक्टर अगर अवेलेबल होगा तो ये एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है, रूट कैनाल, आरसी भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है इनके बदौलत। तो ये इन्हीं प्रोग्रामों का नतीजा है। जब हमने डॉक्टर्स को मोबिलाइज किया, इनको इंसिस्ट किया, इनका कीमती टाइम ले लिया और इनको बताया हमारे प्रोग्राम्स में आइए, प्लीज आप देखिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज वो 300 पेशेंट नहीं है, आज 450 पेशेंट है। इन हर साल करीब 9 से 10 पेशेंट का इजाफा हो रहा है इसमें। तो बजट तो बढ़नी ही है, ड्रग्स तो बढ़नी ही है, लेकिन इदारों में बैठे लोग क्या बोल रहे हैं कि इतने महंगे दवाइयां आप क्यों ले रहे हैं। आप ये बात सुनिए, ये भी बात इतने महंगे, मतलब आप सब स्टैंडर्ड ले लीजिए दवाइयां, कोई टेंशन नहीं, पेशेंट्स को क्या हो जाएगा, हमने ये दिखाना। आप महंगी दवाइयां क्यों ले रहे हैं? महंगी दवाइयों से क्या हुआ है कि पिछले 5 साल से किसी की मौत नहीं हुई ब्लीडिंग की वजह से। ये है उन दवाइयों का नतीजा, उसी पर असल में लड़ाई है। आप हमारी पसंद का दवाई ले लीजिए, आप वहां से कोई डिमांड, मतलब डिमांड में ये मत बताइए कि हमें या किसी भी मतलब कोई भी मीटिंग डॉक्टर साहब को होती है ये टेक्निकल ये एक्सपर्ट की हैसियत से, तो हमने ये बात नहीं करनी है कि हमें लॉन्ग एक्टिंग या जो आज नए ड्रग आए हैं वो यूज नहीं करने हैं। आपको जी कोर्ट प्लाज्मा ड्राइव जो यूरोपीय या बाकी कंट्रीज में 20 साल पहले बंद हुआ है, आपको जी उसी पर आना है। बहरहाल हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। हम अपने डॉक्टर साहब के मशहूर और मदद है, डॉक्टर मुख्तार साहब, इन सब का, और हीमोफीलिया सोसाइटी मेंबर्स जो परवेज साहब है, आदिल साहब है, नवाज साहब, शकील साहब, ये हम पूरी टीम की जो एक टीम बनकर एक टीम है, ये उसी का नतीजा है जो हम आज लड़ रहे हैं। हर नगर पर, हर कॉर्नर पर हम लड़ रहे हैं। हम इंशाल्लाह नहीं बैठेंगे। और हमारे बाकी मेंबर डॉक्टर मुख्तार साहब है, यूसुफ साहब है, डॉक्टर अब्दुल साहब है, अल्ताफ साहब है, वो अभी नहीं आए हैं, और बाकी भी वो सपोर्ट कर रहे हैं हर लिहाज से। अल्ताफ साहब के भाई रूफ साहब तो हीमोफीलिया सोसाइटी के लिए, तो ये जो हम कर रहे हैं, जो मेडिसिन हम ला रहे हैं, डॉक्टर ये शबनम सिस्टर हैं, हम अपने जो डे केयर में बैठे डॉक्टर्स या स्टाफ, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जमीला जी है, ये शाहिद साहब है, अर्शिद साहब है, वहाँ पर डॉक्टर साहिबा। एक और बात मैं आपको बताऊं, पिछले 2 महीने से कोई भी डॉक्टर नहीं, आप देखिए पॉलिसीज गवर्नमेंट की क्या है कि पहले ट्रांसफर कर दी उन्होंने मेडिकल ऑफिसर्स की, ये सोचे बगैर कि ये यहाँ पर क्या बनेगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इतनी प्रॉब्लम्स और हीमोफीलिया में, अगर वो पहले डॉक्टर्स को वहां भेज दे, ठीक है मेडिकल एजुकेशन से भेज दे, अगर उन्होंने डायरेक्टरी हेल्थ से डॉक्टर्स को उठाया था तो मेडिकल एजुकेशन से डॉक्टर्स को भेज दे, लेकिन उन्होंने पहले उनको उठाया। आज तो कोई भी डॉक्टर डिप्यूट नहीं हुआ और ये कह रहे हैं बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं जी हमारे पास स्टॉक की कमी नहीं, वो नहीं। ग्राउंड लेवल पर क्या है वो अल्लाह ही जानता है और हम पेशेंट्स लोग जानते हैं। बहरहाल शबनम मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा सोसाइटी के सपोर्ट में रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया। Thank you on your untiring and tireless efforts in Hemophilia Daycare Centers. Now I request Professor Sheikh Bilal Ahmed, Head of the Department, Postgraduate Department of Pathology, to deliver the inaugural sermon. Good morning. मौजूद साहब ने एक लंबी कहानी बोली, और जो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है 17 अप्रैल, ये हम किस लिए मनाते हैं। तो एक्चुअली इसका जो मेन मकसद है, वो मेन मकसद ये है कि जो हम जिसने इस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया जो WFH है, वो भी एक पेशेंट बॉडी है, और फ्रैंक शॉनडल देव के उनका बर्थडे है 17 अप्रैल, उसने इसकी संग बुनियाद है। ताकि क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप सबसे बड़े हीरो हैं, हीरो इन द सेंस जो
ये उसको हम डिजीज भी नहीं, एज ए मेडिकल कंडीशन है ये, लेकिन हम इनको पेशेंट्स भी नहीं बोल सकते। जो आप हीमोफीलिया के बच्चे हैं या बड़े हैं या आप उनके केयर गिवर्स हैं, माँ बाप भाई बहन जो भी इनको केयर करता है, मैं उनको तहे दिल से सल्यूट करता हूँ। सल्यूट इसलिए करता हूँ क्योंकि एक हीमोफीलिया ये सबसे बड़ा चैलेंज है इन द सेंस ऑफ जो इससे जूझ रहा है उसके लिए चैलेंज है, और दूसरा जो इसका केयर करता है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, क्योंकि वो हर दिन, हर रोज, हर समय इस थ्रेट में रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को ब्लीड न हो जाए, क्योंकि ये ऊपर वाले ने एक ऐसी मेडिकल कंडीशन रखी है जिसमें न कोई इन्फेक्शन है, न कोई कुछ जिससे उसकी मतलब अपनी कुछ आदत की वजह से ये बीमारी हो। ये एक नेचुरल एक जीन जो है, जो हमारे में प्रोटीन बनाता है, जो हमारे खून को मतलब जमने में मदद देता है, वो प्रोटीन आपके खून में नहीं है, हमारे खून में है। तो हम इसलिए किस्मत वाले हमारे हैं, तो हमें ब्लीड नहीं होता है। आपके पास नहीं है तो आप ब्लीड करते हैं। तो ये ऊपर वाले की देन है, बस इसमें इसीलिए मैं आप लोगों को इसमें ये सल्यूट करता हूँ कि आप इस चैलेंज से जुड़ते हो। आप क्योंकि इस मरीज से जो भी है क्रॉनिक पेन होती है, ब्लीड होती है, तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपका जो मेंटल स्टेटस बहुत हाई है, और हम भी कोशिश करते हैं। ये एक मैं हमेशा ये इस फोरम में बोलता हूँ कि ये एक टीम वर्क है। टीम वर्क है, एक तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो भी डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, MTS नर्स जो भी इसमें है, और पेशेंट्स जो पसंद हीमोफीलिया है, PWH जिनको कहते हैं, उनके माँ बाप जो भी केयर को करते हैं। तो ये सारी एक टीम है। इस टीम से ये फायदा आता है कि अगर आप हमें कोऑर्डिनेशन हो, और इसीलिए ये हम ये गैदरिंग करते हैं ताकि ये अवेयरनेस जनरेट हो जाए, क्योंकि आपके भी हैं रिश्ते में जो भी आपके मतलब ममेरे हैं या फुफेरे हैं, बाकी कैरियर होता है जीन फीमेल्स में और मेल्स में एक्सप्रेस होता है। तो आप उनमें भी ये अवेयरनेस आते हैं कि जो ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ये हमें कौन कौन से सिम्टम्स हैं इसमें, और कैसे हमें अपनी आपको तशखीश करनी चाहिए, सेंटर में जाना चाहिए, ताकि हमें ये डायग्नोज हो जाए और हम ट्रीट हो जाए। तो ये हो गया हीमोफीलिया डे के बारे में जो हम मनाते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि मतलब हम एक दूसरे फ्लोर पे आए और अवेयरनेस जनरेट हो जाए। अवेयरनेस जनरेट होने के बाद ताकि हमारे एक अच्छा केयर मिले, अच्छा सपोर्ट मिले, ताकि ये बच्चे भी हमारी तरह नॉर्मल रहें और अपना काम करें, पढ़ें, लिखें और दुनिया की हर कोई हाईएस्ट पोजीशन एक्वायर करे। तो इनमें वो चले, इसलिए इसको हम रॉयल डिजीज कहते हैं। ये बादशाहों की बीमारी है जो लंदन में हुई थी। तो आप लोग सारे बादशाह हैं, ऐसा ये नहीं सोच रहे कि आप सारे बादशाह हैं। तो आइए आप बादशाहों में, इसलिए इसमें आपको इसमें ये दिल छोटा रखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं मतलब फिर भी आप लोग बहुत अच्छे हैं, कॉपरेट करते हैं और चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव का जो माजिद साहब ने आपको बोला, तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं। सिस्टम ऐसा है, ये यूरोपियन सिस्टम नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ये आ जाए। मैं भी मेरी तरफ से मतलब मैं डिमांड करता हूँ कि ये है स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है या ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, WFH का है, तो ये है, ये केयर हमें चाहिए। मैं अपनी जगह मैं नहीं डरता हूँ, वो माजिद ने बोला, मैं ये बिकॉज दिस इज ग्लोबली यू आर डूइंग। और जब हम डरेंगे, लेकिन डरेंगे किसकी? जब हम चोर हैं नहीं, अगर आप चोरी होती तो डर जाते। हमें स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो बोलना है कि ये WFH गाइडलाइन है, ये वर्ल्ड फोरम की गाइडलाइन है, हमें इसके लिए ये चाहिए। रेगुलर रिप्लेसमेंट थेरेपी है, क्योंकि इसमें इस बच्चे के खून में ये प्रोटीन नहीं है, तो ये प्रोटीन उसको रखना है 1% से अब हो या 5% से अब हो, तो ये नॉर्मल रहेगा। क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों को भी ये सल्यूट करता हूँ, क्योंकि आपके बच्चे को ब्लीड होता है, आपको कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, तो आप वो काम छोड़ते हैं, आपको हॉस्पिटल का रुख करना होता है। आपको बहुत सारी सिटी के नहीं है, कोई शुपियन से है, कोई बारामूला से है, कोई कुपवारा से है, टंगडार से है, बहुत पेट्री है। और कश्मीर में इन दूर चीजों से सेंटर में आना बहुत मुश्किल की बात है। आपको फिर गाड़ी देखनी है, सोमो देखनी है, रोड की कंडीशन देखनी है, तो बहुत से चैलेंजेस हैं।
आपका अपना काम छोड़ना है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, कोई काम दिन को कमाता है 500-600, उसको वो 500-600 लूज करने हैं, उसको जाना है क्योंकि उसको बच्चे को केयर करना है, उसको सेंटर में पहुंचना है, उसको दवाई लगानी है। तो ये चैलेंजेस आप फेस करते हो डे इन डे आउट। इसीलिए आप लोगों की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ और हम भी आपके लिए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप में जो रेगुलर रिप्लेसमेंट थेरेपी का हमने प्रोटोकॉल स्टार्ट किया था, तो वो बरकरार रहे, ताकि आप भी अपना काम अच्छी तरह करें। जो कि आपने देखा 2013 से जब एक सफर स्टार्ट हुआ 2019 तक, हम वो डाटा कलेक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि हमने कितने बच्चों को खोया, कितने बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए, कितनी बार वो घर से सेंटर तक आए, कितना फ्रीक्वेंटली आते थे। और जब हम 2019 से हमने रेगुलर रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट की, तो फिर वो कितना कम हो गया, कितने एडमिशन, कितनी इमरजेंसीज कम हो गई। तो उससे वो हो जाता है, वो डेटा हम प्रिपेयर कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट को हम दिखाएंगे कि देखो ये है एक ट्रीटमेंट, ये है दूसरा ट्रीटमेंट, इसका फायदा देखो और इसका डिसएडवांटेज देखो, ताकि उनको भी ये पता चले। पर बदकिस्मती है कि ये फोरम है, इस फोरम में हम बुलाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिसी मेकर्स को, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ वन रीजन और अदर रीजन दे डोंट कम। तो बट ये थ्रूआउट इंडिया एंड थ्रूआउट वर्ल्ड ये होता है कि पॉलिसी मेकर्स और द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, उनको ये मैसेज पहुंचाई जाती है बाय दीज प्रोग्राम, बाय दीज CMEs के। देखो भाई, क्योंकि हमारे इवन इन मेडिकल फ्रेटर्निटी पॉलिसी मेकर्स की तो बात ही नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स की बात ही नहीं है, इवन हमारे अपने डॉक्टर साहिबान में उनको भी हीमोफीलिया के बारे में भी पूरा पता नहीं, बहुत पता नहीं है। क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब जब भी कोई एसेस करते हैं, पहले अभी जब मैं आया लैब तो कोई नहीं थी, पहले सब भी मतलब कोई भी सर्जरी करने के पहले टेस्ट लिखता था, ये करो जी BTCT, बस BTCT ठीक है तो मैं सर्जरी करूँ, वो दौर भी चला गया। अब हमने कोगुलेशन स्टार्ट किया, PT APTT, फिर भी डॉक्टर साहिबान लिखते हैं PT INR। अरे APTT तो लिख लो, PT INR क्या होता है? PT तो आपका फैक्टर 7 का एक्सटेंसिव पाथवे का बोल देगा, APTT का बोल दो। अभी तो फिर मैंने अपने डिपार्टमेंट में क्या डिक्टेम बनाया है, मैंने बोला जब भी कोई PT आया APTT आप खुद कर लो, अगर डॉक्टर साहब लिखे ना लिखे, लेकिन APTT आप कर लो, कोई बात नहीं, आप उसके ले लो उसको जो भी है, लेकिन आप वो कर लो। तो ये कंप्लीट कोगुलेशन प्रोग्राम, तो उससे हमें एक, क्योंकि 2017 में हमने एक CME की डेंटल कॉलेज में यही हेमोफीलिया डे, तब तो बड़े अच्छे हमारे थे प्रिंसिपल प्रोफेसर सामिया रशीद, उसने समझा क्योंकि